सजेस्ट करना चाहेंगे, और वो ये कि आपको ज़रूरत है अपनी स्पीच में स्टैंडर्ड वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करना। जब आप अपनी लैंग्वेज को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है फ्रेजेस, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस और साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स टाइप्स ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंस के जो फॉर्मेशंस हैं उन्हें ज़रा अच्छे लेवल पर बनाएं। जैसे कि आपने एक सेंटेंस बोला था इट इज़ बैंड पबजी के लिए, तो अगर आप बोलते नाउ इट हैज़ बीन बैंड तो ज़्यादा बेहतर लगता। तो आपको अब अपने सेंटेंस के फॉर्मेशंस को स्टैंडर्ड बनाना है, वोकैब अच्छी से अच्छी यानी कि वर्ड मीनिंग अच्छे से अच्छे यूज़ करने हैं, फ्रेजेस डालने हैं, कंजक्शंस यूज़ करने हैं और साथ ही साथ प्रीपोजिशंस का भी यूज़ करना है ताकि आपकी लैंग्वेज में चार चांद लग जाएं। ओवरऑल योर परफॉर्मेंस वाज गुड एंड आपने बहुत सारा कंटेंट, कई सारे पॉइंट्स, बातें जो कि मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड थी बताई। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आपने बताया हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे स्पोकन क्लास, और आज के इस स्पोकन क्लास में आप देख रहे हैं डिबेट टॉपिक, और आज का डिबेट टॉपिक है द मोबाइल फ़ोन। ऑन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू कॉल टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स and they will participate as well as they will convey the message regarding to mobile phone. They will tell you the advantages of the mobile as well as the disadvantages of the mobile. So for this performance I would like to call the first Mr. Sandeep Kumar. Please come on the podium and give your views over the topic, and you guys please give a big hand for him. Good morning all of you. First of all, I want to give my special thanks to our DSO who provided me this golden chance to speak in front of all of you. One thing I want to tell you, that everything which is present in this world has two aspects. First one is positive and the other one is negative. As today we have the topic the mobile phone. So the mobile phone is also has both aspects, its advantages and disadvantages. Firstly, I will tell you the importance of mobile. Mobile has the many importance, and I will tell you one by one the importance of mobile. Firstly, this is very useful for the students because it helps the students for study in many mediums. The students can get the knowledge by the mobile phone very easily at home. They can study each and everything whatever they want in only simple steps, and it is very useful for the girls because whenever the girls goes out of her home, and they have the mobile phone, when they face any problem, then they can inform her parents or any other one by the mobile phone easily. And this has the many important feature that is talk to anyone. By this device we can talk anywhere, any place, anytime, easily, only in some minutes. And we can also make a video call by it, and if someone miss anyone, then that one can see her photo. They can see that person on live. With these words I would like to finish my concept. Thank you very much. Mr. Sandeep, you performed well, your content was well, yet you committed many mistakes grammatically. बहुत सारी आपने ग्रामर में मिस्टेक्स की हैं, जैसे कि गर्ल्स यूज़ कर रहे थे तो उसके साथ में देयर यूज़ करना था, आप हर यूज़ कर रहे।
ऐसी कई सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जो आपने की. दैट्स वाई आई सजेस्ट यू टू इम्प्रूव these kinds of the mistakes. So after this performance, I would like to call the next performer, Mr. Abdul Sadeem. Please come on the podium, and you guys please give a big hand for applause. Good morning, sir, and good morning, all of you. Speak loudly. My name is Abdul Sadeem Siddiqui. First of all, I would like to give my special thanks to my dear sir who provided me this golden chance to speak before you on the topic the mobile phone. As we know, there are two types of energy in the world, positive energy and negative energy. 100% true. And the mobile phone also has two types of energy. We can say it has some advantages and some disadvantages. So before telling you the advantage or disadvantage, I want to tell you something about the phone. The mobile phone is an electronic device which was invented in 20th century. And when it was invented, it had only one feature, that was communication feature. When it was invented, we can only talk, we can only call. But today, in second decade of 21st century, it is completely changed. It is turned into Android phone, and today it is 4G and 5G is on the way. Now I am going to tell you the advantages of mobile phone. The first one, we can talk to relatives, friends, as well as our family members who are very far from us. And we can connect to whole world with the help of mobile by calling, sometime voice calling and sometime video calling. The mobile phone helps us in many ways, as it is very useful for the students. And today in this lockdown period, mobile phone became the boon for the students if they use it in positive way. In this period, many students studied a lot with the help of mobile, because in this situation all the schools, colleges and everything was closed. So students took live classes on YouTube and they studied. And the mobile phone has number of applications by which the students can study. And the one thing, that is Google. We can find any question on Google because it knows everything, whatever is proved by science. And the next thing, it is the source of entertainment. We can entertain ourselves, as in this lockdown period the most of the workers were free and they were at home. Because of their freeness, the mobile phone helps them to remove their aloneness, and they make themselves entertained by watching movies, videos and sometimes playing games. And the next thing is GPS technology. It helps those who are new drivers. The person who did not know the way where you want to go, he can search on Google Play, Google Map, and can find the way easily. And it told the way you are to turn right or left. And the next thing is cashless. The mobile phone has made the world cashless. If you are going anywhere for a visit, there is no need to carry cash with you, because if you are carrying cash with you, there are the chances to be stolen the cash. But because of the mobile phone, it is easy to save your money. If you are using the transactions applications as Google Pay, Phone Pay, as well as Paytm and so on. These apps makes the life of a man easy and comfortably.
We need not to go to bank. We can pay by the mobile. And the next thing is, mobile phone became the boon for the businessman, because number of the businessmen hold their business with the help of mobile phone. They need not to go to office for doing their work. They can manage their work by the mobile phone. So these were the advantages of mobile phone, and now I am going to tell you the disadvantage of mobile phone. The first and the worst disadvantage is the radiations of mobile phone, which is very harmful for every creature, even for a small bird. You must have seen the movie Chris 3, and the content of that movie was based on the radiations of mobile phone. So by seeing that movie, you can understand the harmfulness of the radiations. And the next thing, it is the wastage of time. Most of the people waste their time in mobile phone, sometimes watching movies and playing games. As before some time, it was a game named PUBG. It ruined the life of the students, but today it is banned, so it is good for the students. And it also has some disadvantages, as it is very bad for our culture. The mobile phone has ruined the culture of India. We have lost our culture because of the mobile phone. By moving the movies, Hollywood or Bollywood. So with these words, I would like to finish my concept here. That's it. Thank you and have a fantastic day. शानदार स्पीच के साथ ये थे अब्दुल सदीम। इन्होंने बेहतरीन स्पीच बोली, लेकिन इसके बावजूद भी हम इनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, और वो ये कि आपको ज़रूरत है अपनी स्पीच में स्टैंडर्ड वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करना। जब आप अपनी लैंग्वेज को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है फ्रेजेस, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस और साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स टाइप्स ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंस के जो फॉर्मेशंस हैं उन्हें ज़रा अच्छे लेवल पर बनाएं। जैसे कि आपने एक सेंटेंस बोला था इट इज़ बैंड पबजी के लिए, तो अगर आप बोलते नाउ इट हैज़ बीन बैंड तो ज़्यादा बेहतर लगता। तो आपको अब अपने सेंटेंस के फॉर्मेशंस को स्टैंडर्ड बनाना है, वोकैब अच्छी से अच्छी यानी कि वर्ड मीनिंग अच्छे से अच्छे यूज़ करने हैं, फ्रेजेस डालने हैं, कंजक्शंस यूज़ करने हैं और साथ ही साथ प्रीपोजिशंस का भी यूज़ करना है ताकि आपकी लैंग्वेज में चार चांद लग जाएं। ओवरऑल योर परफॉर्मेंस वाज गुड एंड आपने बहुत सारा कंटेंट, कई सारे पॉइंट्स, बातें जो कि मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड थी बताई। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आपने बताया कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो दो प्रकार की एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती हैं, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। तो सिंपली मोबाइल फ़ोन के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उनकी नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं या फिर पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम जो है पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं तो हम मोबाइल का सदुपयोग करेंगे, अदरवाइज़ हम मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे और दुरुपयोग करने वालों को उसकी सज़ा मिलेगी। वो अपना इस सज़ा के रूप में वो अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करेंगे, जबकि सदुपयोग करने वाले को उसका एडवांटेज मिलेगा। सो नथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बैड, इट्स योर मेंटालिटी दैट्स मेक सो। तो अब सबसे पहले कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट ना कर पाए, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को स्ट्रांग रखें और पॉजिटिव एनर्जी ही दूसरों तक पहुंचाएं ताकि नेगेटिव एनर्जीज जो है वो आप पर हावी ना हो पाए। एक बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप एज ए समरी यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। आप सर्च करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको बहुत सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे और उसमें जो है आपको मिलेगा कि समरी में उस बुक का जो है पूरा कंटेंट बताया गया है और आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें आपको यही पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ओवरऑल द स्पीच वाज वेरी गुड एंड एक्सीलेंट
And after him, I would like to call the next performer, Mr. Hasnain Raza. Please come on the podium and give your views over the topic, and please give a big hand for him. एक अकेला क्या कर सकता है? अगर आपको ये जानना हो तो एक बार सूरज की तरफ देख लेना, पता चल जाएगा कि एक अकेला क्या कर सकता है। A very very good morning to all of you. Good morning. Dear friends, I am Mohammad Hasnain Raza. Today I am going to tell you about mobile phone. But first of all, I would like to give my special thanks to my dear sir who gave me a golden opportunity to speak before you. An American pioneer, Martin Cooper, is considered the first mobile phone in 1973. He is considered the father of mobile. It is developed the Motorola company. Mobile phone has most advantage and disadvantage. So I am going to tell you some advantage of mobile phone. Mobile phone is made communication easy with the friends and family members. It is very useful applications are available in the mobile phone like camera, WhatsApp, Google Pay and so on. Online banking, shopping is done by the mobile phone. Internet facility can be accessed at any place. Audio and video can be sent only on a button of click. In this situation, all college, school and universities removed. So all students reading the mobile phone, reading on the mobile phone. Now I am going to tell you disadvantage of mobile phone. Some students waste the time in mobile phone during learning age, and it is very harmful to health because an Australian health research of institute use of mobile phone can be lead to ear, eye and brain cancer. It is very harmful. With these words, I would like to finish my concept here. Thank you and have a nice day. एक अकेला क्या कर सकता है? यकीन ना आए तो सूरज की तरफ देख लेना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रभावी कोटेशन थी। ये इस बात की सबूत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में वो सारी ताकतें, वो सारी योग्यताएं और काबिलियत हैं जो कोई दूसरा कर सकता है। और कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हैं और अकेले होने के कारण आप कुछ नहीं कर सकते, जिसका एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल अभी हसनैन रज़ा ने आपके सामने दिया। और हसनैन रज़ा, आई प्रे टू गॉड दैट कि आप बहुत ही जल्दी एक अच्छे स्पोकन इंग्लिश के परफॉर्मर होंगे, आप एक बेहतरीन स्पीकर होंगे और साथ ही साथ आपकी जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं में हमें कुछ स्पेशलिटी दिखाई पड़ती है, क्योंकि तुम कोशिश करते हो जबकि सबसे यहाँ पर जूनियर हो इसके बावजूद भी। लेकिन अभी जो कमियाँ हैं तुम्हारे स्पीच में, वो कमियाँ ये है कि अभी आप कई सारे वर्ड्स जो है वो गलत जगह पर यूज़ कर जाते हैं। जैसे कि कहीं पर करना है यूज़ आपको इम्पोर्टेंस और आप वहाँ पे इम्पोर्टेंट यूज़ कर देते हैं, या फिर इम्पोर्टेंट यूज़ करना है और उसकी जगह पे इम्पोर्टेंस यूज़ कर देते हैं, या फिर अभी आपके जो सेंटेंसेस हैं वो पूरे स्ट्रक्चर कंप्लीट ना होकर कभी कभी ग्रामेटिकली उनमें मिस्टेक्स होती है या स्ट्रक्चर्स उनके कंप्लीट नहीं होते हैं। और जो थर्ड आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो है प्रोनाउंसिएशन में। कई सारे वर्ड्स आप अभी भी उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहे हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को
इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए ज़रूरत है मेहनत करने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीचेस सुने। आपको चाहिए कि आपको ऐसे मौके निकालने हैं कि जिनके तहत आपको इंग्लिश स्पीचेस ज़्यादा से ज़्यादा सुननी है, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेक्चरार्स हैं जो इंग्लिश में स्पीच देते हैं, आप उनको यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया पे आप ढूंढ कर उनको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सुने। और साथ ही साथ जो भी चीज़ देखें, जैसे कि अगर आप मूवी भी देखते हैं तो मूवी भी इंग्लिश में देखें, इंग्लिश मूवी में देखें। मैंने कहा इंग्लिश मूवी देखें, नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि आप हॉलीवुड की मूवी देखें। हमारे जो बॉलीवुड की और टॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं वो इंग्लिश में डब्ड हैं। आप उन मूवीज़ को देखें जिसमें कि हमारे इंडियन एक्सेंट के ऊपर आधारित उनका कन्वर्जन है, उनकी जो मूवीज़ हैं वो दी गई हैं। डोंट टॉक प्लीज़। सो दिस इज़ माई सजेशन टू यू, एंड आफ्टर हिम I would like to call the next performer, Mr. Sonu Rajput. Please come on the podium and give your views over the topic. And please, you guys, give a big hand for him. हंसने के लिए नहीं आए, बेइज्जती कर दें कैमरे के सामने। Good morning, everybody. Very good morning. I am Sonu Rajput, and today I am going to tell you about mobile phone. But first of all, I would like to my special thank Mr. Awad Ali sir, who gave me this golden chance before all of you. I cannot study this topic because I went to Delhi, so I cannot speak this topic. Thank you, and have a nice day. एक्चुअली इनका कहने का मतलब था कि इन्होंने इस टॉपिक के ऊपर तैयारी नहीं की है, क्योंकि ये दिल्ली गए हुए थे, लेकिन इनकी ज़ुबान फिसल गई और दिल्ली को इन्होंने एक नए नाम के साथ में नवाज दिया। मुगेम्बो खुश हुआ। खैर, नो प्रॉब्लम। अब मैं बुलाना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू कॉल द नेक्स्ट परफॉर्मर मिस्टर फरदीन सिद्दीकी. Please come on the podium and give your views over the topic, and you guys please give a big hand for applause. Good morning, sir. Good morning, my dear friends. I am Mohammad Fardeen. I belong to Kamalganj, and today I am going to speak on my speech topic, the mobile phone. But at the first place, I would like to give my special thanks to my dear sir, who made me able to stand on this podium. My dear friends, in this modern world, we need many modern things, and mobile phone is one of them. It is very important for our life, and every work of our life connected with the mobile phone. But we know that everything which is made by science has both advantages and disadvantages. So firstly, we should count the advantages of mobile. My friends, in this corona pandemic, mobile phone proved a very useful device for us, because there were no option before us to study, and we have to study to my mobile phone. So it is very useful for a student if they use it properly. My dear friends, mobile is very useful for making video and audio, and also for making calls. It is very useful for political parties during elections, because they show their ads on social media like Facebook, Instagram, and etc. It is very useful for girls, because when they go out from their home, they can inform their parents to their relief. Doing business has been very easy and simple since the mobile phone came in the market, because the merchants
the merchants can transfer their data to each other. Mobile phone has many uses which I cannot count. So that's it. Thank you and have a great day. और अब मैं बुलाना चाहूँगा इस बैच की सबसे प्रसिद्ध हस्ती मिस्टर भानु प्रताप. प्लीज़ कम ऑन द पोडियम. प्लीज़ यू गाइस गिव अ बिग हैंड. जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से संवर जाती है ज़िंदगी, हर एक काम तकदीर पर डाला नहीं जाता. A very good morning, all of you. I would like to thank my dear sir, Mr. Awad Ali, who gave me the golden chance to opportunity. I am going to tell you about the mobile phone. I am going to tell you about advantage mobile phone. It is useful education, knowledge, and it is useful online shopping and banking. It is useful location GF, and it is useful very important mobile phone. I am going to tell you about disadvantage mobile phone. It is mobile phone cyber crime and harmful girls and boys with these word concept. Thank you. Have a I nice would day. like to, with these words, with these words, I would like to finish. I would like to finish my concept here. That's it. Thank you. Have a nice day. तो ये थे भानु प्रताप. भानु प्रताप, आपने जो क्वाड बोली वो सच में बहुत ही शानदार क्वाड थी, लेकिन इस क्वाड से सबसे पहले सीख लेने की आवश्यकता आपको ही है. जैसा कि क्वाड में आपने कहा कि मेहनत के बल पे कौन सा ऐसा काम है जो किया नहीं जा सकता. तो भानु प्रताप, स्पोकन इंग्लिश कोई ऐसा बड़ा हुआ नहीं है जिसे बोला नहीं जा सकता और सीखा नहीं जा सकता. तो अगर आप मेहनत करने पे आ जाए, आज आप खड़े होकर थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर आप अगर 4 बातें कह सकते हैं तो एक दिन आप शानदार लेक्चर भी दे सकते हैं. जैसा कि आपकी क्वाड कहती है कि मेहनत के बल पे ऐसा कौन सा काम है जो किया नहीं जा सकता, तो यकीन मानो कि आप भी एक बेहतरीन अंग्रेजी स्पीकर बन सकते हैं. तो पहले आपको इससे सुधार लेने की आवश्यकता है, और जब तक खुद कोई चीज़ फॉलो ना करते हो उसे जनता में गाया ना करें. तो इसके लिए हम आपको जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहद मेहनत की ज़रूरत है. लेकिन हाँ, एक चीज़ ऐसी है, देयर इज़ वन थिंग दैट आई फाउंड दैट एज अ इम्प्रूवमेंट इन यू इज़ दैट कि आपने यहाँ पर पहले से ज़्यादा खड़ा होना सीख लिया और पहले से ज़्यादा बोलना सीख लिया. अब कितना सही था कितना गलत था, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ द मैटर. लेकिन हाँ, आपने यहाँ पर आकर खड़े होना और अपनी बात को कहना सीख लिया है. अब उसे सही ढंग से और अच्छी विचारधाराओं के साथ में और कंप्लीट और फुल ग्रामेटिकल जो मैटर है उसको याद में रखते हुए आपको बोलना और सीखना है. तो ये थे भानु प्रताप, और इनके बाद आई वांट टू कॉल द नेक्स्ट एंड लास्ट परफॉर्मर मिस्टर बासिफ खान. प्लीज़ कम ऑन द पोडियम एंड गिव योर व्यूज़ ओवर द टॉपिक. यू गाइस प्लीज गिव अ बिग हैंड. ना गैर खोल सके ना खबर हुई घर वालों में, कैसे कैसे राज छुपे हैं इस बिन चाबी के ताले में. Good morning everybody. First of all, I would like to thank my dear sir Sayyid Muhammad Awad Ali, who gave me this golden chance to speak here. The first mobile phone survey was started
on 15 August 1995 in India. The first mobile phone Motorola in 1973. The invention of telephone was by Alexander Graham Bell. Advantage of mobile phone. Mobile phone is a boon for us and quickest means of communication in our daily life, and it is helpful sending message and written forms, and audio and video can be most a button click. Disadvantage of mobile phone. Harmful for students and girls and boys because for cheating and crime. I finished my concept. That's it. Thank you and have a great day. पहले से बढ़त के साथ ये थे वासिफ खान, भानु प्रताप, वासिफ खान, दोनों लोग ही दिन प्रतिदिन जो है तरक्की कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है इनके लेवल में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। कभी कभी थोड़ा सा निराशा भी महसूस होती है। ये इनके अपने प्रयास हैं। खैर, ईश्वर से प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे और इन्हें स्टडी करने की जज्बा अता फरमाए, और साथ ही साथ जो है इन्हें प्रैक्टिस करने का एक जुनून पैदा हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। क्योंकि इनके अंदर जो भी कमी है, ये जो भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की कमी है। क्योंकि इंग्लिश कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसमें कि आपको इतनी सी प्रॉब्लम आ रही है कि एक टॉपिक अच्छे से तैयार करके परफॉर्म ना कर पाएँ। एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश क्या, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो जो हमारी अपनी ना हो, उसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और प्रैक्टिस कोई थोड़ी पूरी नहीं, आपको ये समझ लो कि आपको हर समय के लिए अपनी आदत में डाल लेना होता है। जब मैं आपकी तरह क्लास लिया करता था, जब स्पीकिंग क्लास लेता था, तो उस समय मैं आपको बताऊं कि जितना भी समय होता था, चाहे मैं कुछ भी करता था, कोई भी काम क्यों ना कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये कि मेरा ध्यान मेरे टॉपिक पे रहता था और हर समय सेंटेंस को फॉर्मेट करना, उसमें विचारधाराओं को इंक्लूड करना, बोलने की प्रैक्टिस करना, मतलब हर समय का रूटीन बना लिया था और उसी ने जाकर सफल कर दिया, जो आप लोग नहीं कर रहे। आप लोग पर्टिकुलर एक समय निकाल लेते होंगे और उस समय में ही आप बोलकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिया करते होंगे, जिसके कारण आप को इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा। जबकि आपको स्पीकिंग सीखने के लिए चाहिए है कि हर समय आपके दिमाग में वही चलना चाहिए। और अंग्रेज़ी या स्पीकिंग इंग्लिश कोई ऐसा विषय नहीं है जो दूसरे सब्जेक्ट की तरह बैठकर आपको घंटा 2 घंटा या 4 घंटे के अध्ययन की आवश्यकता है। देयर इज़ नो नीड टू स्टडी हार्ड लाइक अदर सब्जेक्ट्स सिटिंग ऑन अ सिंगल प्लेस। ये एक प्रैक्टिस है जो हर समय की जा सकती है, हर क्षण की जा सकती है, हर पल की जा सकती है। आप खाना खाते में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लेटे होने में कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट मीन्स ये फैक्ट है, रियलिटी, जो आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हों, जब हम कुछ कर रहे होते हैं उस समय हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा होता है 101%। इवन जब हम लोग वर्शिप करते हैं तब भी वर्शिप तो कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग हमारा कहीं और लगा होता है, सोच रहा होता है। आपको सिर्फ इतना सा मेंटेन करना है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे आप खेत पे काम कर रहे हों, चाहे आप दुकान पे काम कर रहे हों, चाहे आप रनिंग कर रहे हों, चाहे आप कहीं जा रहे हों, चाहे आप शांत लेटे और बैठे हों, आप हर समय फालतू की चीज़ों को दिमाग में डालकर उनको सोचने से बेहतर है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को, स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा, जो टॉपिक दिया गया, जिसमें आपको डिबेट में शामिल होना है, उनको आप हर समय सोचते रहें, ट्रांसलेशन करते रहें, बोलने की प्रैक्टिस करते रहें, बड़बड़ाते रहें। और आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर आप सच में आप अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो, जो कि मैंने भी किया। इनफैक्ट हमारी आदत इतनी है हर समय सोचने की कि जब हम सोते हैं
तो सोने में भी हमारा सोचना बंद नहीं होता, जो हमारे सपनों के रूप में हमारे सामने निकल कर सामने आता। तो बस आप गलत सोच रहे हैं, उसको सही दिशा में ले आएँ। आप फिजूल की चीज़ों को अपने दिमाग में डालकर और सोचना बंद कर दें, उसकी जगह पर अपनी यूज़फुल चीज़ें लाएं। जैसे कि आई एम ए टीचर, तो मेरे दिमाग में हर समय कोई भी काम क्यों ना कर रहा हूँ, एक ही बात चलती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या टॉपिक रखना है, मतलब हर समय पढ़ाने का मैटर दिमाग में बना रहता है। और जब आपकी तरह सीखते थे, स्पोकन क्लास लिया करते थे, उस समय अंग्रेज़ी बोलने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, ग्रामर के रूल्स, सेंटेंसेस, टॉपिक, यही सारी चीज़ें हर समय दिमाग में बनी रहती थी। उसे बड़बड़ाते रहते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, सोचते रहते थे, और फाइनली ये हुआ कि एक दिन वो आया कि जब एक अच्छा स्पीकर बनकर मैं निकल कर सामने आया। जैसा कि संदीप की विश है, संदीप दोबारा टॉपिक को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो आएँ और अपने टॉपिक को दोबारा परफॉर्म करें और पहले से बेहतर परफॉर्म करके दिखाएं। सो प्लीज़ कम। Again, very good morning to all of you. First of all, I want to give my special thanks to our dear sir who gave me this wonderful opportunity to speak in front of all of you. One thing I want to tell you that whichever whatever present in this world has two aspects. First one is positive and the other second one is negative. And today we have the topic the mobile phone. So the mobile phone is also have the positiveness and the negativeness. And firstly I want to tell you the importances of mobile. And the mobile has the number of the importance. Firstly, it is very useful for the students. Students can study each and everything by the mobile phone. Nothing is that student can not study by the mobile phone. Whatever, whenever they face any problem, then they can solve their problem by the mobile phone. And it is a good source of knowledge. You can collect any knowledge anytime by the mobile phone. If you want to know anything about any person, then you can search the history of that person only a single click on a mobile phone. If you want to know something about any political leader, then you can search everything about that person in your mobile phone. And the most important thing that mobile has the YouTube. The YouTube is a boon for the students and for the other person also. But the students can get a best knowledge by the mobile phone, by the YouTube. YouTube has the all types videos. The teachers who have the well knowledge, they सब वीडियो उस यूट्यूब पे डालने के लिए क्या होता है, they upload their videos on the YouTube, and the students can watch their videos and get the knowledge freely. And the mobile phone is also useful for the cashless system. I think before 4 and 5 years the system cashless is running on, and it is very useful for everyone. And mobile phone also has some disadvantages. The most biggest disadvantage of mobile, the radiations. The mobile phone reduce the radiations. That is very harmful for our culture, for the birds and for the animals also.
And the next one disadvantage of mobile has the cyber crime. It is very harmful for the businessman and some famous persons. The hackers hack their data by the mobile phone easily. With these words, I would like to finish my concept here. Thanks and have a nice day. कोशिश अच्छी की, लेकिन पहले वाली स्पीच मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा ही बेहतर थी। गाइस, सभी ने जो है मोबाइल फ़ोन्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताया, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जितना अच्छा परफॉर्म आप लोग कर सकते थे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब्दुल सलीम ने किया, लेकिन जितनी अच्छे तरीके से वो इसको टॉपिक को परफॉर्म कर सकते थे उनके तरीके में थोड़ी सी कमी थी। कंटेंट अच्छा था, स्पीच लेंदी थी, सभी कुछ अच्छा था, लेकिन उन्होंने उसे स्टैंडर्ड नहीं बनाया। इसलिए इस टॉपिक को मैं एक बार फिर कल के लिए दोबारा आगे बढ़ाता हूँ, यानी कि यही टॉपिक आपको कल भी बोलना है। और इस आशा के साथ इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल इस टॉपिक को और अच्छे से तैयार करके बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एकदम सीरियसली। जिसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर सकें। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि टॉपिक को इम्प्रेसिव बनाने के लिए किसी एक क्वाट के साथ में आप गुड मॉर्निंग विश करेंगे, अपना परिचय देंगे और वेलकम करेंगे, और उसके बाद आप इस बात को एड्रेस करेंगे कि आप किस टॉपिक को परफॉर्म करने जा रहे हैं। और इतना करने के बाद अगर आप दोनों पहलुओं पर मोबाइल फ़ोन के फेवर और अगेंस्ट दोनों में बोलना चाहते हैं तो आप दोनों में बोल सकते हैं। अगर आप कोई एक पहलू यानी कि एडवांटेज बताना चाहते हैं तो आप सिर्फ एडवांटेज बताएं। आप लोग कन्फ्यूज़न अपनी ना बढ़ाएं। सिर्फ एडवांटेज बताना हो तो एडवांटेज बताएं, या फिर सिर्फ डिसएडवांटेज बताना हो तो डिसएडवांटेज बताएं। दोनों बताना है तो दोनों भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए भी और चीज़ों को अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं आपको कल मौका देता हूं, आप लोग सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के एडवांटेज के ऊपर बोलेंगे। और ये जो टॉपिक था द मोबाइल फ़ोन, तो ये टॉपिक अब हो गया द एडवांटेज ऑफ द मोबाइल फ़ोन, जिस पे आपको बोलना है ताकि आप लोग इतना सारा जो कन्फ्यूज़न लिए घूम रहे हैं वो आपका ख़त्म हो जाए। द एडवांटेज ऑफ अब आपका टॉपिक हो गया द एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। अब आपको कल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन के एडवांटेज के ऊपर ही बोलना है। जब आप कल मोबाइल फ़ोन के एडवांटेज के ऊपर बोल चुके होंगे तभी लास्ट में हम आपको मोबाइल के डिसएडवांटेज का टॉपिक भी दे देंगे और उसके ऊपर पॉइंट्स भी बता देंगे। फ़िलहाल द एडवांटेज ऑफ द मोबाइल फ़ोन के पॉइंट्स जिनको मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से आपके सामने परफॉर्म करके दिखाता हूं, जिसे आपको सुनना है और अपने कंटेंट को, अपनी क्वाट्स को, अपने थॉट्स को आपको खुद ही डेवलप करना है, यानी कि कॉपी नहीं करना है। देखिएगा, सबसे पहले आपको बताएं एडवांटेज ऑफ मोबाइल में यूज़फुल फॉर स्टडी। हमारा ये जो आज की जो मोबाइल है ना, आज की टेक्नोलॉजी का सबसे मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है, जिसे आप इस तरह से कहेंगे मोबाइल फ़ोन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 21st सेंचुरी पीपल, कि 21वीं शताब्दी के लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ अ फास्ट डिवाइस, इट इज़ फुल ऑफ टेक्नोलॉजी, इट हैज़ अ नंबर ऑफ द फीचर्स एंड व्हाट नॉट इट कैन डू। ऐसा क्या है जो ये कर नहीं सकता? इट कैन डू ईच एंड एवरी थिंग टूडे वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इन दिस 21st सेंचुरी। आज के इस दौर में इंसान को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन करके दे रहा है। इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण इसका यूज़ है स्टडी। मोबाइल फ़ोन इज़ यूज़फुल फॉर स्टडी।
किसी समय स्टडी में बहुत परेशानियां आती थी, किताबें नहीं मिल पाती थीं जो आप पढ़ना चाहते थे अधिक नॉलेज के लिए, या फिर आपके पास पैसे नहीं होते थे किताबों को ख़रीदने के। बट राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल यू कैन कलेक्ट एनी काइंड ऑफ द बुक इवन फ्रॉम द फॉरेन, कि विदेश तक से आप किताबों को ख़रीद सकते हैं मोबाइल की सहायता से। यू कैन डाउनलोड द PDF फाइल ऑफ द बुक्स विच यू रिक्वायर्ड, जिस किताब की आपको ज़रूरत है उसकी PDF यानी कि पूरी किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ द नॉलेज एंड डेटा एंड स्टडी मटेरियल यू कैन कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एकत्रित कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को आप एक बुक की तरह यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन एज अ बुक, you can use your mobile phone as a notebook, you can use your mobile phone as a store room, आप मोबाइल को एक स्टोर रूम, you can use your mobile as a safe, अलमीरा की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। and today with the help of the mobile students are gaining more and more, they are learning more and more because they have sufficient chances, opportunities, sufficient time to spend in study। शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसका अपना एक समय होता है, एक लिमिट होती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन की सहायता से आप चीज़ों को बार बार पढ़ सकते हैं, जितना चाहें उतना समय दे सकते हैं, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आई आप 1000 बार पढ़ सकते हैं। तो स्टडी के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन बेहद यूज़फुल है। नेक्स्ट, ये जो मोबाइल फ़ोन है आपके लिए नॉलेज इकट्ठा करने का एक बेहतरीन सोर्स है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कलेक्टिंग द नॉलेज। किसी भी क्षेत्र की नॉलेज आपको चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज चाहिए, आपको किसी भी देश के बारे में जानना है, किसी भी प्रदेश के बारे में जानना है, किसी भी विद्वान के बारे में जानना है, उसकी बुक के बारे में जानना है, किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, किसी भी रिसर्च के बारे में जानना है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड विद अ सिंगल क्लिक ऑन योर मोबाइल फ़ोन। सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पे आपको आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। मोबाइल फ़ोन वो एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें अनलिमिटेड नॉलेज का सोर्स भरा हुआ है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक वक्त था लेसन छूट जाया करते थे, दोबारा उनको तकलीफ होती थी। आज मोबाइल की सहायता से, टुडे विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल, स्टूडेंट आर गेटिंग ईजियर सोर्सेज टू ऑब्टेन द नॉलेज। बड़ी आसानी से नॉलेज को हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। स्पेशलिस्ट जिन तक हम पहुंच नहीं सकते, हम यानी कि हम स्टूडेंट्स पहुंच नहीं सकते, उन इंस्टीट्यूशंस में जहां तक हमारे लिए पहुंचना नामुमकिन है, फीसिस को हम अदा नहीं कर सकते, जिन बड़ी हस्तियों और पर्सनालिटी से हम मुलाकात नहीं कर सकते, तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात रही। ऐसे स्पेशलिस्ट, ऐसे महान शिक्षकों के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, तो वो है मोबाइल जो हमारी सहायता प्रदान करता है। और इसके अलावा मोबाइल का सबसे कॉमन यूज़ जो है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑडियो, वीडियो, मीडिया एंड सोशल मीडिया। You can chat with anyone. You can make a video call. आज आप अकेले नहीं हैं। You are not alone if you have a mobile. कर लो दुनिया मुट्ठी में। इस बात को पूरा किया है इसी मोबाइल ने कि आप जंगल में ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास मोबाइल है तो आप अकेले नहीं हैं।
आप अपनी मॉम से बात कर सकते हैं, अपने डैड से बात कर सकते हैं, अपने भाई बहनों से बात कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, हर उस अजीज़ व अकारिब से बात कर सकते हैं whom you love and like most. It makes our life easy and comfortable. एक वक्त था जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे तो बड़ी समस्याएं आती थीं। वो जितने दिन बाहर स्टडी करते थे अपने पेरेंट्स से ना बात कर पाते थे, ना देख पाते थे, ना मिल पाते थे, तो पेरेंट्स को भी उनकी चिंता सताती थी और वो भी अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा याद करते थे, अपने गाँव को, अपनी धरती को, अपनी ज़मीन को। लेकिन आज मोबाइल की सहायता से अमेरिका में बैठा हुआ बच्चा भी, उसको भी इन सारी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जब भी अपने पेरेंट्स की, अपने डियरेस्ट की, नियरेस्ट की जब याद आती है, वो कॉल करके, चाहे वो ऑडियो कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो, करके अपने आप को संतुष्टि दे सकते हैं। हर चीज़ आसान हो गई है, दूर जाना आसान हो गया है, विदेशों में पढ़ाई करना आसान हो गया है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है तो मोबाइल के कारण हुआ है। तो ये मोबाइल की क्वालिटीज़ हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा मोबाइल जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है कई सारी और दूसरी परिस्थितियों में, जैसे कि सोशल क्राइम बढ़ रहे हैं, जो सामाजिक क्राइम है, गुंडागर्दी हो रही है। अगर कहीं पर गुंडागर्दी हो रही है तो कोई ना कोई व्यक्ति फ़ोन से पुलिस को या और कहीं कॉल कर सकता है और उस लड़ाई को निपटा सकता है। यानी कि क्राइम्स को, लूटपाट को, घटनाओं को रोका जा सकता है मोबाइल की सहायता से। प्रूफ्स इकट्ठा किए जा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, न्यूज़ पहुंचाई जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह पर, झूठ के पर्दे फाश किए जा सकते हैं, सच्चाई सामने लाई जा सकती है मोबाइल की सहायता से, होने वाले अपराध को रोका जा सकता है मोबाइल की सहायता से। और तो और जो गर्ल्स के साथ, लेडीज़ के साथ जो दिन प्रतिदिन जो बुराइयां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, हैरेसमेंट बढ़ रहे हैं, शोषण बढ़ रहा है, इसको भी मोबाइल की सहायता से रोका जा सकता है। So I will say mobile phone is most important and useful for the girls. They feel safe if they have mobile. उनको सेफ महसूस होगा अगर उनके पास मोबाइल है, बिकॉज क्योंकि उनको लगेगा कि अगर हमको कोई समस्या आएगी, आई विल कॉल टू माई फादर, आई विल कॉल टू माई मॉम, आई विल कॉल टू माई ब्रदर, आई विल कॉल टू पुलिस एंड दे विल सेव मी, दे विल हेल्प मी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो है वो बुरे वक्त जैसी, दुर्घटना जैसी सिचुएशन में भी बड़ा काम का होता है। अगर आपके साथ अचानक कुछ घटित हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, या आपकी हेल्थ अचानक जो है ब्रेकडाउन हो जाती है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या आप अचानक किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो आप मोबाइल के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप हेल्प मांग सकते हैं, आप दुर्घटनाओं की इन्फॉर्मेशन सही जगह पर पहुंचा सकते हैं अपनी फैमिली को, डॉक्टर्स को, पुलिस को, या जहां पर भी आपको हेल्प की चांसेस हैं, आपके हेल्प के अगर साधारण भाषा में जुगाड़ है, वहां पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। और नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हम सारी शॉपिंग मोबाइल फ़ोन पे करते हैं। घर बैठे हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो चीज़ जो हमें हमारे बाज़ारों में मिलती नहीं थी, लेकिन आज इस मोबाइल की सहायता से हम ऑनलाइन शॉपिंग करके हम दुनिया के किसी भी कोने से हम चीज़ को अपने पास तक प्राप्त कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। इट इज़ मोबाइल फ़ोन। बाय द मोबाइल फ़ोन यू कैन परचेज द थिंग्स ऑनलाइन, यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग। हर चीज़ पसंद की आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये मोबाइल फ़ोन ही है जिसने आपके वजन को, आपके लोड को, आपके बिजनेस को कम कर दिया। बिजनेस को रिड्यूस करने का काम किया है मोबाइल फ़ोन ने। आपके पैसे के बोझ को कम करने का काम किया है मोबाइल फ़ोन ने, क्योंकि कैशलेस सिस्टम जब से आया है, जब से कैशलेस सिस्टम आया है, आप जो है कई सारे ऐप्स जो है वो लॉन्च हैं, और उन ऐप्स की सहायता से आप अपनी बैंकिंग का सारा काम उसी से निपटा सकते हैं, सारे लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अरबों खरबों करोड़ों रुपया जिसे आपको किसी समय बैग में और दूसरी सुविधाओं से एक्सचेंज करना पड़ता था, और जिसमें तमाम प्रकार के रिस्क रहते थे, ख़तरे रहते थे, लेकिन आज अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप इन सारे ख़तरों से अपने आप को बचा सकते हैं। सिंपली ऑन अ सिंगल क्लिक आप अरबों खरबों लाखों करोड़ों हज़ारों, यहाँ तक कि 1 रुपया तक चाहें आप
एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी समय के बर्बाद किए। तो मोबाइल फ़ोन किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि मोबाइल फ़ोन जो है अनलिमिटेड एरियाज़ में हमारे लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ है, हेल्पफुल सिद्ध हुआ है और इसके एडवांटेज अनलिमिटेड हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको मोबाइल फ़ोन के फेवर में बताए। आई होप कि आप जो है कल इसके ऊपर एक बेहतरीन टॉपिक लिखेंगे, कंसेप्ट तैयार करेंगे और यहाँ आकर एक बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म करेंगे और आज से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और साथ ही साथ मेरे जो व्यूअर्स जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी इस टॉपिक को लिखेंगे और इस पे परफॉर्मेंस अपने आप करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन से आप कहीं पर भी क्यों ना हो आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटरमाइंडेड बनना पड़ेगा और आप जहाँ हैं, जिस कोने में हैं, जिस जगह पर भी हैं, वहीं से आप ये सारी स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप वहीं बैठे बैठे अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट। और यू गाइस प्लीज़ जाते जाते वीडियो को क्लोज करते करते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।